Hello students, in the last class we have discussed on the Faraday's experiment and his conclusion. Now on the basis of his uh, experiment, the Faraday posits the two laws which are known as laws of electromagnetic induction. Okay, in the two laws, the first indicates the quality of the induced EMF, and in the second law we can understood about the quantitative values of this induced EMF. Okay, now the first law. Okay students, these are the two Faraday's laws. One is called qualitative law. It states that whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the coil or circuit. The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. Okay, and second is quantitative law. Quantitative law, which states that the magnitude of EMF induced in a closed circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Okay, if change in magnetic flux d phi in time, in small time dt, therefore the induced EMF is directly proportional to negative rate of change of magnetic flux upon time. Okay, that is induced EMF is directly proportional to minus d phi upon d. ओके, अब अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, where n is proportional to constant and indicates here the number of turn on the coil or over the coil. ठीक है, इसी से अगर हम ऐसा माने कि d phi is the value of flux final and the initial flux in time dt, therefore we can write this induced EMF is equal to minus n phi 2 minus phi 1 upon dt. ठीक है, नोट कर लीजिए. अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट that the induced EMF opposing the change in magnetic flux
ओके। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक दैट व्हाट इज द नेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और रिलेटेड करंट। दिस इज explained by the basis of Lenge's rule or the Fleming right hand rule. Now first we understand about the Lenge rule. Okay, according to Lenge law, as in the second law we observe the EMF induced in the coil due to the change in flux is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked to the coil। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल सी ऐसी बात करें दैट कि ये जो हमारी कॉइल है इसका रेजिस्टेंस R हो, देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट बाय यूजिंग E अपॉन R। ओके, हियर इफ दिस E इज इंड्यूस्ड EMF, therefore this current is also induced with the induction of EMF। okay, so whenever the EMF induced in the coil, it also responsible for the induction of current or charge in the coil। now on the basis of this concept, Lenge's state his law, which is the induced current produced in a circuit always flow in such a direction that it opposes the change or cause that produce it। ठीक है, जैसा कि according to Faraday law हमारे पास है the induced EMF is negatively proportional to change in flux। ठीक है, that is E is equal to minus n d phi अपॉन dt। तो हम इसे लिख सकते हैं E is equal to minus n phi 2 minus phi 1 अपॉन t। ठीक है, अगर इतना फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू E अपॉन R। ठीक है, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू माइनस n phi 2 माइनस phi 1 अपॉन T अपॉन R। ओके, वेयर दिस R इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ऑफ circuit। okay, now so it is observed that, देखिए नेचर क्या है इसका। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के पास में ये नॉर्थ पोल रखता हूँ। तीन चीजों को देखिएगा, दिस इज केस 1, नेक्स्ट इज ये मेरे पास कॉइल है और ये मेरा मैग्नेट है फेसिंग नॉर्थ टुवर्ड्स कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आई हैव अ कॉइल एंड अ मैग्नेट facing south pole towards coil, and next point is the magnet facing साउथ पोल टू द कोल। देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल फेस करता हुआ टुवर्ड्स द कोइल मूव करता है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम
टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लिंक्ड विद द कॉइल, जो कि फैराडे एक्सपेरिमेंट 1 था। हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड इट डेवलप्स अ EMF. Due to that EMF, a current is induced in the coil. So Lenge's rule basically gives us the direction कि वो क्या होगी। जैसा कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो करंट इंड्यूस हो रही है वो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब जो कॉइल में करंट डेवलप होगी उसका नेचर ऐसा होगा कि वो इसको रोक सके। जैसा कि स्टेटमेंट भी कह रहा है, अपोजेस द चेंज दैट कॉज और प्रोड्यूस इट। ठीक है, तो अगर ये इस तरफ आ रहा है तो जो ये कॉइल है ये क्या बनाएगी, अपना नॉर्थ पोल ही जनरेट करेगी, ताकि आने वाला मैग्नेट, एज वी नो दैट द नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर। ओके, तो इस केस में ये क्या करेगी, अपना नॉर्थ पोल बनाएगी ताकि ये रुक जाए। फॉर मेकिंग दिस नॉर्थ पोल, that is indicates that a current which is developed in it due to this EMF minus d phi upon dt, the current induced in it is equal to minus 1 upon r d phi upon dt is anti-clockwise in nature. ठीक है, such that it makes the north pole. Similarly, if the magnet is moving away, ठीक है, मैग्नेट अवे मूव करेगा तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस, दैट मीन्स द फ्लक्स रिड्यूस। ठीक है, फ्लक्स रिड्यूस करेगा तो ये एक ऐसा नेचर डेवलप करेगी जिससे ये यहाँ पे साउथ पोल बना सके। साउथ पोल बना के क्या करेगी, वी ऑल नो दैट द नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोल नॉर्थ अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो कॉइल होगी वो क्या करेगी, एक नॉर्थ साउथ पोल बनाएगी सच दैट वो इसके अवे मोशन को स्टॉप कर सके, जो कि उसमें करंट के प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस केस के लिए वो क्या करेगी, ये क्लॉकवाइज करंट डेवलप करेगी। अगेन द वैल्यू ऑफ दिस EMF इज माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, सो डी फाई अपॉन dt। ठीक है, तो हम जो इसमें करंट देखेंगे वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन r डी फाई अपॉन dt. The direction of current in the coil is reversed. Similarly, अगर एक साउथ पोल फेस करते हुए कॉइल की तरफ आएगा तो इसको फिर सेम नेचर में अपना साउथ पोल बनाना पड़ेगा, which means if the magnet facing south pole to the coil moves toward the coil induced an south polarity by inducing a current in clockwise direction. ठीक है, this current is clockwise. ठीक है, such that the coil generates or get the polarity, south polarity, to oppose the relative motion. And the fourth case, if the magnet facing south pole is moving away, the coil generates its north pole such that to oppose the motion, because north and south pole attracts each other. तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके लिए वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी एंड द इंड्यूस्ड करंट इज माइनस 1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। ओके, एंड दिस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स हमारे पास लेंज लॉ की कुछ एप्लीकेशन भी है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है, इस तरह से प्लेस्ड किया हुआ है, जो कि हमने फैराडे लॉ में एक्सपीरियंस भी किया है। लेट्स से कि इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और एक मैग्नेट इसकी तरफ नॉर्थ पोल फेस करते हुए आएगा। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो मैग्नेट नियर टू कॉइल आ रहा है इस तरह से, तो ये भी अपना क्या करेगी, नॉर्थ पोल, ताकि वो उसको अपोज कर सके। दिस डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेंजेस लॉ, ताकि वो उसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो रूल है टू डिटरमाइन द करंट, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल आपको याद कराऊं। दैट अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर मिडिल फिंगर, thumb, index finger and middle finger in such a way that all these at right angle to each other, and the index finger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current in the circuit, then the thumb indicates the force, that is thumb in the direction of force, this indicates magnetic field and middle finger indicates current। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि जो फोर्स होता है वो अननोन क्वांटिटी है, F इज अननोन। ठीक है, हमें दो चीजें पता होती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, तो हमें फोर्स थंब के डायरेक्शन में मिलता है। एक चीज और है स्टूडेंट, कि अगर फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाइड हो रहा है तो वो इंडिकेट कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स आपका मोशन दिखाएगा। हमारा राइट हैंड रूल क्या है, इफ वी इंडिकेट्स आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट्स मोशन, मोशन विच मीन्स फोर्स, देन द मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ induced current, force that is motion, or you can say motion which indirectly indicates force, this indicates direction of magnetic field, then middle finger indicates induced current। ओके, इसको राइट अप कर लीजिए। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब mutually perpendicular to each other, and if index finger indicates the direction of magnetic field, thumb indicates the motion of the rod, then the middle finger indicates direction of induced current। यहाँ पे F और B नॉन क्वांटिटीज हैं और इंड्यूस्ड करंट अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चार्ट बना लेते हैं। इन FRH रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, B नॉन, F और मोशन नॉन, I जो कि इंड्यूस्ड करंट है अननोन। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको इन दो लॉज में पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स अननोन है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट नॉन वैल्यूज हैं, जबकि राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स नॉन क्वांटिटीज है और करंट अननोन क्वांटिटी है। थैंक यू।